Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu, gold medalist. Today's lecture are most important for CSIR NET Physical Science and Chemical Science both students. If you are preparing for this exam, then watch complete this video. Today I will start my first lecture. This is the first lecture of NET, and I will solve some questions and basic concept of atomic and molecular physics. Okay, then we will take a spectroscopic term. The topic is spectroscopic term. What is the spectroscopic term? This I will teach these topics on the basis of numerical questions which are asked in your examination. Okay, if you want to detail study of concept, then you should follow your books, and I will solve some numerical questions and concept which are useful for your exams. Okay, then if you talk spectroscopic term, then what is the symbol of spectroscopic term? Spectroscopic term, what is the symbol? Its symbol is N 2s plus 1 Lj. It is the symbol of spectroscopic term. This is the symbol of spectroscopic term, N 2s plus 1 Lj. Here what is the N? N is principal quantum number, and S is spin quantum number, and J is total angular quantum number, and L, this is the symbol of subcell. It is symbol of subcell. Okay, this is the symbol of subcell, and this is the symbol of subcell. This is the spectroscopic term notations. We will follow this here. If and here 2s plus 1, this is called multiplicity. Okay, it is also called spin multiplicity, basically spin multiplicity. And here if the value of spin S is half, okay, then multiplicity 2s plus 1, you get 2 into 1 by 2 plus 1, that means 2. Okay, that means 2. It is called doublet. Then in this condition, doublet. I can explain deeply what is the meaning of doublet, but here I will explain only on the concept which are asking your exams. Here S equal to, if S equal to 0, then multiplicity is 2s plus 1. Its formula is 2s plus 1. 2 into S equal to 0 plus 1, that means 1. It is called singlet. Okay, if the spin is 0, then you get singlet value. If spin is half, then you get doublet value. If the spin quantum number is 1, then spin value is 1, then multiplicity 2s plus 1, you get 2 into 1 plus 1, that means 3. It is triplet, and it's so on. अगर वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे तो आगे भी ऐसे वैल्यू मिलते जाएंगे. ये मल्टीप्लिसिटी हुआ कि आपको सिंगलेट कब मिलेगा, डबलेट कब मिलेगा, ट्रिपलेट कब मिलेगा. ये वैल्यू डिपेंड करता है स्पिन क्वांटम नंबर पे, और जो n है ये टोटल क्वांटम नंबर है. ठीक है, हियर s. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट. व्हाट इज द मीन? जो s है ना, इसको मैंने क्या बोला, सिंबल. हियर L is it is a symbol of subcell. ठीक है, that means if L, it is the symbol of subcell, and you have a subcell is you got subcell SPDF. It is a subcell. Okay, and cell is represented by KLMN. It all are cell, and this is the subcell. Okay, so here if L equal to 0, okay, in the case if L equal to 0, then you know S subcell. If L equal to 1, then you get P subcell. L equal to 2, then you get
sp_d सब सेल। यदि l की वैल्यू 3 होगी देन आप क्या प्राप्त करोगे, f सब सेल। ऐसे ही आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से l की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 मिलता है तो s सब सेल होगा, s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। सबसेल इज आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल हो जाएगा। l इक्वल टू 1 तो p ऑर्बिटल 2 है तो इतना, ठीक है। ओके, एंड इसको सॉल्व करेंगे। j की एंड द वैल्यू ऑफ j यू कैन फाइंड आल्सो, देखो देन एंड वैल्यू ऑफ j डिपेंड ऑन l एंड s, ठीक है। दैट मीन्स स्मॉल l, स्पिन क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके, दोनों पे j की वैल्यू डिपेंड करती है। इफ यू वांट फाइंड द j वैल्यू देन यू शुड यूज रसेल सॉन्डर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ j वैल्यू इज वैल्यू फ्रॉम l माइनस s टू l प्लस s, ओके। j की वैल्यू l माइनस s से l प्लस l तक होती है, ऐसे आप j वैल्यू फाइंड करना। क्लियर है? देखो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देन फाइंड फर्स्ट केस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इन s सबसेल, ठीक है, या s ऑर्बिटल बोल लो, एक ही चीज है, ओके। दैट मीन्स लाइक यू हैव लाइक 1s1, ओके, जिसमें भी s ऑर्बिटल होगा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 डॉट डॉट। यदि आप कोई भी ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे सोडियम को सॉल्व करते हो 11 आएगा, ठीक है, तो 1s2, 2s2 और 2p6 हो गया और 3s1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब मैं आपको ऑल इन वन को समझाता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट्स हो जिसके लास्ट में यदि s1 में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, उस केस में आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। चाहे वो 1s1 हो, 2s1 हो, 3s1 हो, 4s1 हो, कोई भी हो, सबकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक सम सेम आता है। कैसे फाइंड करेंगे देखना ध्यान से। फॉर दिस ऑल इन दिस कंडीशंस, ओके, फॉर दिस l वैल्यू इज 0 फॉर s orbital, you know also, and here only one electrons, that means s orbital के लिए 1 orbital होते हैं, here is only 1 electron, so spin is plus half. If you have it is a clockwise directions and the spin is plus half, then in this case l equal to 0, okay, and what is the value of spin? Spin is equal to half, here spin is half, and find j value, it is varies from l to s, that means l plus s to l minus s, okay. Then you can find this, what is the value of l is 0, s is 1 by 2, 2 l is 0, s कितना है 1 by 2, तो देखो कितना 0, 1 by 2 से 1 by 2, तो 1 by 2 से 1 by 2 मतलब क्या है, वैल्यू कितनी है, सिंपल 1 by 2, क्योंकि 1 by 2 से 1 by 2 के बीच में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। सो j की वैल्यू कितना मिल गई आपका 1 by 2, ओके, इतना मिला। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कितना हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म you know 2s plus 1 lj, okay. Then solve this 2, what is the value of s, 1 by 2 plus 1, and what is the value of l, l सिंबल क्या है, l इक्वल टू 0 है, सो इसके प्लेस में l के प्लेस में क्या लिखोगे s ऑर्बिटल, क्लियर है। j, what is the value of j, j is 1 by 2, देन देखो इसको कैंसिल कर लो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2s 1 by 2, ठीक है। तो इट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगा सबके लिए ना, चाहे 1s हो लास्ट में,
2s1 हो, 3s1 हो, 4s1 हो, 5s1 हो, सारे के सारे किसी भी एटम में यदि आप देखे हो लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि इन सब में फुलफिल होंगे तो इन सब के लिए कॉमन आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2s1 2s हाफ होगा. इट इज द आंसर ऑफ दिस. ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल आल्सो. टेक a screenshot. I will solve some other question. Second, spectroscopic term, spectroscopic term for single electron in p orbital. Okay, spectroscopic term or single electron in p orbitals like boron, aluminium, gallium, indium, titanium. Okay, helium, these all values, and excited state of alkali spectra, excited state of alkali स्पेक्ट्रा. इन सब के केस में क्या होता है, इन सब में देखोगे ना तो इसमें भी कितना होगा, लास्ट में p ऑर्बिटल ही खत्म होंगे. ठीक है, इन सब के केस में आपको देखोगे तो p2 से स्टार्ट होता है, मतलब 2p1, 3p1, 4p1, 5p1 लाइक दिस. इन सब के सब में होते हैं क्योंकि ठीक है. बोरॉन का 5 हो जाएगा तो आप करके देख लो. बोरॉन का 5 है तो कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p1. ठीक है, कितना में खत्म हुआ, 1 में हुआ. ठीक है, ऐसे आप किसी का भी देख सकते हो तो सारे के सारे में 1 में खत्म होगा. तो मैंने आपको ऑल इन वन समझाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो यदि उसके लास्ट में p1 में अगर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस केस में आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे फाइंड करोगे. ओके, इन दिस केस हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l. सपोज आप इसको कंसिडर किए हो तो p ऑर्बिटल के लिए l कितना होता है, 1 होता है. एंड फॉर p ऑर्बिटल्स यू हैव 3 होंगे. ठीक है, केवल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाओगे. इट इज कॉल्ड px, इट इज py एंड इट इज pz. इट इज +1 0 -1 ये ml की वैल्यू होती है. तो 1 इलेक्ट्रॉन्स है. सो हियर स्पिन इज हाफ. आप स्पिन हाफ दिखाना. ओके, देन इस केस में अगर आप फाइंड करना चाहो देखो क्या हो जाएगा. सो j फाइंड करो, l - s टू l + s. आप j फाइंड करते हो तो j कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 टू 1 + 1/2. तो इसको 2 1 = 2, 1/2 से 3/2. सो आपका j की वैल्यू कितना मिला, 1/2, 3/2. ये कितने हो गए, j की वैल्यू हो गई. ओके, देन अब देखो मल्टीप्लिसिटी भी यहीं से फाइंड कर लो पहले ही, अच्छा रहेगा. 2s + 1 कितना है, s = 1 है तो सॉरी 1/2 है तो +1, दैट मीन्स 2, दैट मीन्स इट इज डबलेट. ओके, देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म it is 2s + 1 lj. so here 2s + 1 value is 2, l, j is 2 value, सॉरी l के प्लेस में क्या लिखोगे, देखो p ऑर्बिटल के लिए l कितना होगा, सॉरी l = 1 है सो p ऑर्बिटल होगा. ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल हो गया. ये वैल्यू कितना है, 1/2 और 3/2. इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, 2p 1/2 और 2p 3/2. तो दिस इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इन दिस केस. ओके, तो आप ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फाइंड कर सकते हो. ये देखो मैंने एक बार आपके सारे क्वेश्चन के लिए करा दिए हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चंस में आए, कोई भी आपका एटम्स ले लो, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में यू हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ऑलवेज यू गेट दिस. ठीक है, आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हो, यही आपका आंसर ही आता है इस केस में. एंड मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ. d ऑर्बिटल में अगर इस केस में अगर है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कितना होगा, सॉल्व करके देन कमेंट मी. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग. If you like this video then like, subscribe and share with your friends. Okay, thanks. See you in next video.